scientist Watson and Crick, based upon two regions, based on two facts. One is Chargaff's rule, another one is X-ray diffraction studies of Wilson and Franklin. Now, what our Watson and Crick are saying about the DNA, how it will look, all the things we will discuss now. Okay, right. So Chargaff's rules are very clear to us. Now let us see how the DNA will be. Now our Watson and Crick are saying that the DNA has two polynucleotide chains. DNA is having how many chains? Two polynucleotide chains coiled helically in clockwise direction. In clockwise direction. Okay. Around common axis. Common axis. So what he is saying, there is a common axis. It will be not there, imaginary. Two strands will be there. This is the first strand, which are coiled helically like this way. They are coiled. Okay. So DNA consists of two strands. This is the first strand. This is the second strand. Two strands are coiled around a common axis. So there is no common axis. It is an imaginary statement. So Watson and Crick are saying that DNA contains two strands and two strands are coiled around each other. This was their first point. That the DNA is consisting of two strands. Okay. And the two strands are coiled helically around each other in clockwise direction. So the DNA which is present in the human beings, it is the coiling is right-handed side. That is to say, in clockwise direction. Okay, this is their first point related to the structure. And second point is two strands are anti-parallel. What is the meaning of anti-parallel? Anti-parallel means if one strand is running in 5 to 3 prime direction, another strand will be moving in 3 to 5 prime direction. So this is known as anti-parallel nature of the strands. So the two strands of the DNA जो है anti-parallel होते हैं. एक strand 5 to 3 है तो दूसरा strand 3 to 5 है. There is a second rule, second point. And thirdly, they are saying there exists complementary base pairing. कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग का मतलब होता है एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायमिन से, ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन से. एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग. अगर एक स्ट्रैंड पे एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा? थायमिन होगा. अगर एक स्ट्रैंड पे ग्वानिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होगा? साइटोसिन होगा. इस प्रकार का जो बेस पेयरिंग है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग. तो वैटसन और क्रिक बोल रहे हैं कि जो दो स्ट्रैंड्स है उसमें कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयरिंग होता है और दो स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से स्टेबल है. ओके, इफ देयर आर नो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रैंड्स विल बी सेपरेटेड. These 3 points are clear? Yes, sir. Right. In DNA, how many strands are there? In DNA, how many strands are there? क्या हुआ? No answer? Two strands, very good. So in DNA, two strands will be there. Okay, and the two strands will be coiled in complementary, base paired in complementary manner, right? Now,
Here another important point is, before that you solve this 5 to 3 prime. This is first strand, and they are having A, T, G, C. What are the base pairs present in the second strand? सेकंड स्ट्रैंड में कौन से बेस पेयर्स होते हैं? Come on, speak out. Harsh, can you answer this? Very good. GC, GC कैसा बेटा? Again, any further answers? TACG. TACG, absolutely correct. TACG, Nayan's answer is correct. Okay. So this is known as complementary base pairing. यहाँ पे T होगा, यहाँ पे A होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे G होगा. क्लियर? क्योंकि A हमेशा T से पेयर करेगा, G हमेशा C से पेयर करेगा. कहने का मतलब T pairs with A, C pairs with G, A pairs with T, G pairs with C. Clear? Now, question number 2. Total number of hydrogen bonds in above DNA is dash. 10. 10, absolutely correct. 10. A और P के बीच 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Clear? Okay. So this is the concept here. Complementary base pairing. These 3 points are clear. Okay. Now, the length of one turn of DNA is 34 angstroms. Remember the number here. Length of one turn is 34 angstroms, which is also equal to 3.4 nanometers. मतलब ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है. एक टर्न का लेंथ कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम्स होता है. ओके. सो द लेंथ ऑफ वन टर्न ऑफ द डीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम्स. दैट इज टू से 3.4 नैनोमीटर्स. 3.4 नैनोमीटर्स. एंगल ऑफ वन टर्न 360 डिग्रीज. एक टर्न का एंगल, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्रीज. This is the second point. Third point, the distance between successive base pairs is 3.4 angstroms और 0.34 नैनोमीटर्स. ये एक टर्न है. एक टर्न का टोटल लेंथ कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम है. इधर A है, इधर T है. दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम्स होगा. मतलब दो बेस पेयर्स के बीच का डिफरेंस डिस्टेंस जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम्स या 0.34 नैनोमीटर रहेगा. ऐसा वैक्सलैंड ट्रिक बोल रहे हैं. ओके. नाउ डायामीटर ऑफ द डीएनए. ह्यूमन डीएनए का जो डायमीटर होगा वो 20 एंगस्ट्रॉम्स होगा.
राइट। 20 एंगस्ट्रॉम्स का मतलब होता है 2 नैनोमीटर। कन्वर्शंस, देयर आर 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स रहेंगे। ओके, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स रहेंगे। ये भी एक रूल है वैशनर क्विक का। राइट। सी, डायमीटर ऑफ डीएनए जो है 2 नैनोमीटर है, मतलब 20 एंगस्ट्रॉम्स। एक टर्न में 10 बेस पेयर्स रहेंगे। दोनों बेस पेयर्स का डिफरेंस होगा 3.4 नैनोमीटर। लेंथ ऑफ द हेलिक्स होगा, मतलब लेंथ ऑफ द एक टर्न होगा 34 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल। एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क। Piyush, you are following? Vasil, Yes, sir. Harshita, understanding? Yes, sir. Harshita, Sharayu, Yashasvi, Tejas, यस सर। ओके। इसको सिर्फ याद रखना है। ओके, आगे हम इसके आधार पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। सो दिस डाटा यू हैव टू रिमेंबर। ओके, स्टिल 2-3 पॉइंट्स आर देयर दैट आई विल राइट, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर देम। नाउ लिसन, roughly how to remember them, what the Washington and Crick are saying। ये अपना मान लो, ये अपना डीएनए है, ये डीएनए का एक टर्न है। ओके, तो ये डीएनए के एक टर्न में कितने बेस पेयर्स है? 10 बेस पेयर्स हैं। डीएनए का एक टर्न का लेंथ कितना है? इसका जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक कितना है? ही इज सेइंग 34 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, ये जो है लेंथ ऑफ द डीएनए है। तो इसको कहा जाता है पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, सो डीएनए का जो एक टर्न होता है उसका जो लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। ये जो है 34 एंगस्ट्रॉम्स है और एक टर्न में 10 बेस पेयर्स है। क्लियर? और यहाँ पे मान लो एक बेस पेयर है, यहाँ पे एक बेस पेयर है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे दूसरा है। 3 हो गए, 6 हो गए, 7, 8, 9, 10। समझ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब एक टर्न में 10 बेस पेयर है। और एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर का जो डिस्टेंस है वो 3 पॉइंट कितना दिया है? वो 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? राइट। और अनदर रूल इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वन टर्न इज इक्वल टू 30। एक टर्न में मैक्सिमम 30 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रह सकते हैं। मिनिमम मिनिमम नंबर कितना है? 20। दिस आल्सो यू रिमेंबर।
1 ton contains maximum of 30 hydrogen bonds, minimum of 20 hydrogen bonds. Clear? जहां तक सब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा. Yes, sir. Right. One question. DNA isolated from E. coli was found to have 5 tons. Then total base pairs will be 50 base pair. very good. 1 ton 10 BP, 5 tons 5 into 10 50. Answer will be 50. Clear? So there will be 50 base pairs. Very good. Right. So this is the thing of the structure of the DNA, which was given by Watson and Crick. So Watson and Crick 1953 में डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था. डीएनए का स्ट्रक्चर 2 पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए उन्होंने दिया. एक पॉइंट है चारगा फ्रूट, दूसरा पॉइंट है एक्सरे. ओके. और ये जो डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक ने दिया है वो मोस्ट एक्सेप्टेड है. इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया. तो डीएनए जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए होता है बेस्ड अपॉन कॉइलिंग. तो हमारा जो डीएनए है राइट हैंड के तरफ कॉइल करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल करता है. बट कुछ ऐसे भी डीएनए हैं जो एंटी क्लॉकवाइज भी कॉइल करते हैं. तो डीएनए आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड अपॉन कॉइलिंग. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए बेस्ड अपॉन द कॉइलिंग. आप थोड़ा बात करो. तो आप साइलेंट रहोगे तो फिर मुझे समझ में नहीं आएगा ना कि एनीथिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट. Understanding, sir. Okay, only Harsh is replying, Tejas is replying, Palak is replying, others nothing. ऐसे बैठ गए इम्यूनिटी बढ़ाते हुए. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इसलिए मैं बार बार आपको पूछ रहा हूँ. Like screenshot I am not getting. So this is the 5' and 3' of the DNA which I have already explained you. Okay, right. So based upon the coiling, we have different types of DNAs. So once I will explain you orally. Once you refer the workbook after my explanation in your free time. So now the DNA which we are discussing, वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए को एक्सप्लेन किया वो बी डीएनए है. बी डीएनए का मतलब क्या होता है? जो डीएनए क्लॉकवाइज कॉइल करता है उसको हम बोलते हैं बी डीएनए, कैपिटल बी डीएनए. ओके, व्हाट इज बी डीएनए? इफ कॉइलिंग इज क्लॉकवाइज वी से इट एज बी डीएनए. और बी डीएनए में एक टन में हमेशा 10 बेस पेयर्स होते हैं और ह्यूमन डीएनए इज बी डीएनए. ओके, ह्यूमन बीइंग्स में जो डीएनए है वो जो है बी डीएनए है. लाइक दैट वे वी हैव ए डीएनए. ओके, सो वी हैव ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए एंड डी डीएनए. नाउ ये ए डीएनए जो है सभी ए टू सी सभी राइट हैंडेड मतलब क्लॉकवाइज कॉइलिंग वाले हैं. बट इनमें सिर्फ बेस पेयर्स का डिफरेंस होता है. ए डीएनए में 11 बेस पेयर्स हैं, बी डीएनए में 10 बेस पेयर्स हैं, सी डीएनए में 9.33 बेस पेयर्स हैं, मतलब 9 बेस पेयर्स हैं. डी डीएनए जो है ये भी राइट हैंडेड कॉइलिंग वाला है बट इसके एक टन में 8 बेस पेयर्स है. एक डीएनए होता है जेड डीएनए जो लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग को शो करता है. ओके, सो इन द मॉड्यूल पेज नंबर 200
one table is given. Once you go through the table, okay. Here the important point is what वास्टन एंड क्रिक ने कौन से डीएनए का स्ट्रक्चर को प्रपोज किया. वास्टन एंड क्रिक ने बी डीएनए के स्ट्रक्चर को प्रपोज किया. बी डीएनए क्या है? जो डीएनए राइट हैंड के तरफ कॉइल करता है उसको हम बोलते हैं बी डीएनए. और बी डीएनए के एक टर्न में हमेशा 10 बेस पेयर्स होते हैं. क्लियर? Yes, sir. राइट. Central dogma of molecular biology. Now, वास्टन एंड क्रिक बोल रहे हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. वास्टन एंड क्रिक साइंटिस्टों का मानना है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक डायरेक्शन में ही जाता है या फ्लो करता है. तो उनका कहना है डीएनए जो है आरएनए बनेगा और आरएनए जो है प्रोटीन बनाएगा. क्लियर? डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है वो आरएनए में जाएगा और आरएनए राइबोसोम में जाके प्रोटीन को बनाएगा. तो डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डीएनए के बाद ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ने वाले हैं. हाउ आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम आरएनए फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज ट्रांसलेशन. This is known as unidirectional flow of information. एक दूसरा भी फ्लो है रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. क्लियर? रिवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इसको किसने प्रपोज किया? टेमिन और बाल्टीमोर साइंटिस्ट ने. टेमिन एंड बाल्टीमोर साइंटिस्टों ने इसको प्रपोज किया रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जनरली रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसमें होता है? रिट्रोवायरस में होता है. एचआईवी रिट्रोवायरस का एग्जांपल है. रिट्रोवायरस एक ग्रुप है, एक फैमिली है. उस फैमिली का एक मेंबर है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो एड्स को लाता है. तो टेमिन और बाल्टीमोर ने का कहना है कि वास्टन एंड क्रिक ने जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहा वो तो सही है, बट कभी कभार रिवर्स फ्लो भी होता है. रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को टेमिन और बाल्टीमोर साइंटिस्टों ने कवर किया था. तो रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को फेमिनिज्म भी कहा जाता है. Okay, it is also called as feminism. Now, what is the reverse flow of information? Now, in reverse flow of information, DNA will form RNA, RNA will form protein. This you know very well, right? Formation of DNA from RNA. Formation of DNA from RNA is called reverse flow of info. Clear? Formation of DNA from RNA is called reverse flow of information. Or in other words, RNA forming DNA. For this reaction, we need an enzyme which is known as reverse transcriptase. Clear? Reverse transcriptase. This reverse transcriptase is also called DNA dependent
RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. Okay. Take screenshot or notes. टेकन सर। ये समझ गए? हाँ सर। Okay. Other students, please at least you text me if you are not understanding or understanding. If you text, then I can go according to you. Very good. तो आप लोग थोड़ा नेटवर्क को सुधार लो ना। अब कब तक ऐसा मैं भैरों को गूंगों को पढ़ाऊं? Yes or no? ऐसा पढ़ाने में मजा भी नहीं आता। कोई मतलब ओनली लिटरली 2 स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, तेजस एंड अवर हर्ष। आई नो दैट नेटवर्क इशू सभी के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? 40 स्टूडेंट्स है तो 40 के साथ नेटवर्क इशू है। नो सर। फिर जब नेटवर्क इशू नहीं है तो आप देखो, अभी जरूरी नहीं है कि डाउट ही रहे, कुछ भी बात कर सकते हैं ना। सर आपके गांव में बारिश हो रहा है क्या? नहीं, ये भी बात कर सकते हैं। यस और नो? सर आप दूसरी शादी कब करने वाले, ये भी पूछ सकते हैं। ओके, ऐसा साइलेंट रहे। हाँ हर्ष, वही डाउट आया तुझे भी? हर्ष वही पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, बताऊंगा मैं। सर वासिल, बुलाना जैसे। हाँ बुलाना तो पड़ेगा ना। यस सर। वेयर इज योर ब्रदर अहमद? सर एक्चुअली वेल ही इज नॉट वेल सर। अच्छा अच्छा, क्या हुआ? बुखार आ गया सर उसको, हेडेक भी हो रहा। ओके ओके। हाँ, तो ऐसा थोड़ा इंटरेक्ट करे तो ही मुझे थोड़ा समझ में आएगा कि आपको थोड़ा समझ रहा है। यस सर। वंशिका, Yes, अंडरस्टैंडिंग? sir. अंडरस्टैंडिंग? वैष्णवी सुर? ओके। सो ये था अपना डीएनए का स्ट्रक्चर। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए का मतलब होता है कि हमारे सेल्स के अंदर डीएनए कहाँ पे होता है। तो कैन यू से वेयर आवर डीएनए इज प्रेजेंट? डीएनए कहाँ पे है बॉडी में? ब्लड में है क्या? सर क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम्स में है, हाँ। ठीक है। ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे है? ओके, डीएनए इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स कहाँ पे है? ब्लड में है, न्यूक्लियस। वेरी गुड वैष्णव, इस आंसर इज परफेक्ट, इट इज वेरी करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस। चलो, तो अब कहने का मतलब है ये जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, एक्सेट्रा न्यूक्लियस में है। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए कहाँ पे है? 2 क्वेश्चंस है ना। चलो, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर है अपना डीएनए। तो अपना फिर क्रोमोसोम कहाँ पे है? ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे है? एनी आंसर? अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो वेयर इट्स जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ तेजस, करेक्ट आंसर। वांट टू रिपीट योर आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक, हाँ हाँ, करेक्ट आंसर। हु इज दैट?
वेरी गुड वेरी गुड। साइटोप्लाज्म, मनमीत आई थिंक। Yes. तो जब सबसे टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं तो मनमीत आगे बढ़ जाती है। वेरी गुड। सो इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म व्हेन a cell is prokaryote। चलो ये तो सब ठीक है। तो अब ये जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है? अगर कोई पूछे आपसे, आपके जूनियर्स, ये जीन, डीएनए एंड दिस क्रोमोसोम, ये सब एक है या अलग है? एक ही है। अलग होके भी एक है क्या? एक है। हाँ, ये सब एक ही है। डीएनए, जीन, क्रोमोसोम एक्सेट्रा ऑल आर सेम ओनली। हाउ ऑल आर सेम? लेट अस हैव डिस्कशन नाउ इन डिटेल। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो अभी पहले हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। ये अपना यूकैरियोटिक सेल है, ये अपना न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, अब मैं बोल रहा हूँ जेनेटिक मटेरियल, ना ही क्रोमोसोम ना ही डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिक मिशर, राइट? इसने क्या किया, तो माइक्रोस्कोप में जब उसने न्यूक्लियस को देखा तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ था, राइट? न्यूक्लियस के अंदर कुछ था और इसका नेचर जो है एसिडिक था। इसका नेचर कैसा था? एसिडिक था। और उसने पूछा तो क्या था, पूछा गया उसको, उसने बोला न्यूक्लिन। क्या बोला उसने? न्यूक्लिन। न्यूक्लिन मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला एसिडिक सब्सटेंस। न्यूक्लियस में रहने वाला एसिडिक सब्सटेंस को मिशर साइंटिस्ट ने न्यूक्लिन का नाम दिया। और इसका जो भाई था अल्टमैन, उसने बोला न्यूक्लिक एसिड। एसिडिक है इसलिए न्यूक्लिक एसिड, और थोड़ा नाम को उसने चेंज कर दिया। क्लियर? अब न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर जब इंक्वायरी किया गया, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तो मालूम ये पड़ा कि ये न्यूक्लिक एसिड दो है, एक है डीएनए, दूसरा है अपना आरएनए। अब डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस है हमने ऑलरेडी उसको थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, लाइक दैट, राइट? सो नाउ क्वेश्चन इज, what is DNA, what is chromosome, what is what? Now actually what is the thing here means, ये जो अपना डबल हेलिकल डीएनए है, ये इतना कॉइल्ड है, बीच में सेंट्रोमियर, इसको ही हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए, राइट? अब ये डीएनए का एक पार्ट को यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं जीन। ओके, अंडरस्टूड? अब ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहेगा? ये न्यूक्लियस है तो ये क्रोमोसोम नहीं रहेगा, बल्कि धागा धागा रहेगा पूरा, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है आराम से जब सेल डिवाइड होता है तब वो एक रूप रंग ले लेगा, तब बनाएगा वो क्रोमोसोम। क्लियर? अंडरस्टूड? सो सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्रोमोसोम दोनों सेम है, बिखरे हुए बाल है क्रोमैटिन। Okay, when you are in your house, how your hairs will be chikku chikku, that is chromatin. When you go to a function, you will have your hair setting, that is chromosome. So now chromatin forms chromosome only at the time of cell division. So if you want to see chromosome, you have to see the cell which is dividing. If you see an undividing cell, you can't see the chromosome, you can see chromatin. Clear? ये point clear होगा अभी? Yes. राइट। सो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि ये जो डीएनए है ये कहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे नीट में। सो आई एम राइटिंग द हेडिंग, पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स।
तो पहले प्रोकैरियोट से हम यूकैरियोट्स की तरफ जाएंगे। यूकैरियोट का ही इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट का अपने बुक में नहीं है, बट हमें थोड़ा बहुत उसकी भी जानकारी रखना है। सो वन स्टूडेंट आंसर दैट कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है डीएनए कहीं पे भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है। नाउ डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स इज सर्कुलर। DNA of prokaryotes is circular and lacks DNA of prokaryotes is circular. It is scattered in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में scattered है वो। It is associated with nuclei associated proteins. Nuclei associated proteins. Clear? ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है, ये अपना सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें तो न्यूक्लियस नहीं है। मान लो ये मेरा डीएनए है। डीएनए जो है हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, याद रखो। और एनएपी न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन है ये। अब डीएनए जो है ये न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन को रैपिड है। ओके, इस एंटिटी को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, इसको और भी कहते हैं जीनोफोर। क्लियर? पॉइंट इज क्लियर नो? राइट, वंस अगेन ब्लू सर्कल एनएपी न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन, ये पॉजिटिव वाला है। आई एम राइटिंग एनएपी। ये न्यूक्लियर एसोसिएटेड प्रोटीन को, ये जो मेरा डीएनए है, प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो है ग्रीन कलर में यूज कर रहा हूं, इसको लपट के हैं, सर्कुलर है लाइक दिस। डीएनए प्लस एनएपी, डीएनए प्लस एनएपी, ये दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का दूसरा नाम है जीनोफोर। समझ गए बात को? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, sir. सर व्हाट इज एनएपी? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन, एक प्रोटीन का नाम है वो, जिसका नाम है न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। ओके ओके सर। राइट। ये होगा अपना प्रोकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमें देखना है कि यूकैरियोटिक सेल में हमारा जो डीएनए कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। ओके राइट। अब जब हम यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं, ओके, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। तो आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि सर ये डीएनए का चार्ज क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है जो डिसोसिएट होके, फॉर एग्जांपल ये फॉस्फोरिक एसिड है, मान लो ये अगर डिसोसिएट हुआ, हाइड्रोजन्स निकल गए, तो ये नेगेटिव चार्जेस ही बनाएगा ना। ओके, सो इसीलिए वी आर सेइंग डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, इट इज रैप्ड टू, डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है, इट इज रैप्ड टू, किसको लपट के है? रैप्ड मतलब लपटना। इट इज रैप्ड टू हिस्टोन प्रोटीन्स। क्लियर? ये मेरा हिस्टोन प्रोटीन है, इसको लपट के मेरा डीएनए है। डीएनए नेगेटिव है तो हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज क्या होना चाहिए?
Positive. पॉजिटिव, वेरी गुड। तो हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। सुनाओ, DNA is negatively charged. It is wrapped to histone proteins which are positively charged. Okay, because it is rich in, ये हिस्टोन प्रोटीन्स जो है इट इज रिच इन, इसमें ज्यादातर बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, अर्जिनिन और लाइसिन। याद रखो, मान लो ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन में ज्यादातर अर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड्स होते हैं। ये अर्जिनिन और लाइसिन अमीनो एसिड होने की वजह से ही हिस्टोन्स को पॉजिटिव चार्ज मिलता है। ओके, ये पॉइंट तो चलो अपना क्लियर है कि डीएनए जो है नेगेटिवली चार्जड है, वो जो है डीएनए इसको लपट के। सुनो, ये हिस्टोन है, ये डीएनए, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। और वी आर सेइंग इट एज न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, राइट। यहाँ पे लिख रहा हूँ डीएनए प्लस हिस्टोन्स। न्यूक्लियोसोम, राइट। नाउ ये एक हिस्टोन है, ये एक हिस्टोन है, ये एक हिस्टोन है, एक हिस्टोन है, ये भी एक हिस्टोन है। हिस्टोन को लपट के डीएनए है। न्यूक्लियोसोम, 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 न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ के हैं, इसको कहा जाता है लिंकर डीएनए। क्लियर? Nucleosome is attached to another nucleosome by a DNA which is called linker DNA. Clear? Right. I'm writing that point. Okay. Yes, sir. Right. Now, nucleosome plus linker, इसको कहा जाता है क्रोमैटोसोम। न्यूक्लियोसोम और लिंकर दोनों को साथ में कहा जाता है क्रोमैटोसोम। राइट। यहाँ तक पॉइंट्स अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर विसे क्रोमैटोसोम, CHROMATOSOME। ओके सर। राइट। अब ध्यान से देखो ये डायग्राम को। अब मैं पहले हिस्टोन्स को उतार रहा हूं। ये है हिस्टोन, 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 ये है हिस्टोन को रैप अप में डीएनए है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम।
एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से ज्वाइन है, लिंकर, ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम्स कैसे दिख रहे हैं? एक एक धागा है उसमें मोती है, ऐसा ही दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, Right. sir. Right. So what the point is, nucleosomes appear like beads on string in electron microscope. जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं नजारा, तो न्यूक्लियोसोम जो है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग के जैसा दिखेगा, मतलब मोती के जैसा दिखेगा माला में। ये पॉइंट है। ओके, नाउ और एक पॉइंट है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोन्स। स्टोन जो है, एक जो प्रोटीन है 5 सब यूनिट्स होते हैं उसमें। एक है H1, एक है H2A, दूसरा है H2B, तीसरा है H3 और चौथा है H4। 1 2 3 4 5। तो हिस्टोन्स जो है 5 टाइप्स के हैं, और ये जो है ब्रैकेट वाले, ये डबल नंबर में होते हैं, इसलिए मैं 2 डाल दी। H1 एक ही है, मतलब टोटल कितने हिस्टोन्स हुए काउंट करो। 1 2 3 4, 4 into 2 8 plus 1 9। क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट। अब ये जो है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, 4 into 2 8। इतने हिस्से को बोला जाता है हिस्टोन ऑक्टोमर। इतने पार्ट को क्या कहा जाता है? उतने पार्ट को कहा जाता है हिस्टोन ऑक्टोमर, क्योंकि उसमें 8 सब यूनिट्स हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। क्लियर? यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आई एम राइटिंग H2A, H2B, H3, H4 occur in pairs मतलब 2 नंबर, मतलब नंबर, दे आर इन 2 नंबर्स। ओके, टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टोमर। टू फॉर्म हिस्टोन ऑक्टोमर। H1 is attached to linker. H1 is attached to linker. Now let us see the diagram for more understanding. अपना डीएनए है, H1 है, ये हिस्टोन ऑक्टोमर है। हिस्टोन और डीएनए दोनों साथ में, इसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर? ओके, क्लियर है? Yes, sir. Right. Let us see another photo.
दिस इज विदाउट फुल इंफॉर्मेशन। हिस्टोन कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल जिसमें 8 होते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर, H1 हिस्टोन, ओके, न्यूक्लियोसोम। राइट, ओके, दैट इज द स्टोरी ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर। Now the next thing is strings of heat. They form chromatin. Chromatin will form chromosome at the time of cell division. ओके, कहने का मतलब है ये जो था स्ट्रक्चर अपना, यही क्रोमैटिन बनेगा, कॉइल 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 होके ये एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम बना है। क्लियर? नाउ अगर क्रोमैटिन को पैक होना है सेल के अंदर, उसको और थोड़े प्रोटीन्स भी लगते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, मगर क्रोमैटिन बनने के बाद न्यूक्लियस में क्रोमैटिन को फिर पैक करने के लिए कुछ और प्रोटीन्स भी लगते हैं। ओके, सो पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन एट हायर लेवल्स, okay, requires non-histone proteins. मतलब क्रोमैटिन को फिर से पैकिंग करने के लिए कुछ अलग प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, उनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, इन न्यूक्लियस some chromatin is loosely packed. ओके, तो कभी कभार क्रोमैटिन जो है लूजली पैक्ड भी हो सकता। when the chromatin is loosely packed, we say it as euchromatin. Okay, so inside the nucleus chromatin may be loosely packed. If it is loosely packed, we say it as euchromatin. If it is tightly packed, we say it as heterochromatin. We say it as what? Heterochromatin. यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. So if you see a chromatin, some regions of the chromatin will be euchromatin, some regions of the chromatin is heterochromatin. Now let us see with one diagram. जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, अब देखो कॉन्सेप्ट को देखो। अभी अब पैकेजिंग में ये क्या बोल रहा है? पहले तो अपना बीड्स ऑफ स्ट्रिंग है,
कुछ ऐसा था पहले। कनेक्ट 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 कनेक्ट, ये फिर से कॉइल हुआ। ध्यान से देखो, ये कॉइलिंग हो रहा है। राइट, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ये जो है क्रोमैटिन बना सेल डिवीजन के टाइम पे, क्रोमोसोम बन गया। ओके, अब क्रोमैटिन जो पैक हो रहा है, क्रोमैटिन, इसको पैकेजिंग के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। राइट, क्रोमैटिन का कुछ हिस्सा टाइटली पैक्ड है, देखो यार, लूजली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड, लूजली पैक्ड। राइट, ये जो टाइटली पैक्ड रीजन है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोक्रोमैटिन। इसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। क्लियर, अंडरस्टैंडिंग? अब यूक्रोमैटिन कैसा है? यूक्रोमैटिन को अगर आप कलर डालोगे उतना ज्यादा कलर नहीं लेगा, स्टेन्स लाइटली। ये कलर ज्यादा लेगा, स्टेन्स डार्कली। क्लियर, ये इनएक्टिव है ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली। Instead of transcriptionally, use the word genetically. Inactive. ये ट्रांसक्रिप्शनली और जेनेटिकली एक्टिव होती है। These things you have to remember. Okay. Any questions you raise now? No, sir. Understood up till this? Yes, sir. Right. So this is for today. Tomorrow we'll start up biotechnology. Friday, Saturday. And you know very well what is your exam, when is your exam, everything. If you need any clarity, I hope everybody has the clarity related to the exam, no?